ओम शांति। आज के बाबर साकार मूर्ति 9 सितंबर 2021। आज के विशेष बाबा जोर दिएছেন সার্ভিস করার জন্য, সেবা। যত আমরা সেবা করব তত আমাদের ভাগ্যে জমা হবে। আর বাবা বলছেন বাবাকে याद করলে, বাবার স্মরণে থাকলে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবাকে স্মরণ না করলে আমাদের বিকর্ম হবে না, কিন্তু বিকর্ম বিনাশ হবে না। এই জন্য আমাদেরকে বাবাকে স্মরণ করে নিজের বিকর্মগুলাকে বিনাশ করতে হবে। তো আজকে বিশেষ অ্যাটেনশন বাবা নিজের বিকর্ম বিনাশ করার জন্য বলছেন। তার জন্য লাগবে সার্ভিস। যত আমরা বেশি সেবা করতে পারবো তত আমাদের প্রজা তৈরি হবে। অর্থাৎ সেবাতে আমরা ব্যস্ত থাকলে আমরা বাবার স্মরণও বেশি করতে থাকতে পারবো। তো বাবা বললেন, मीठे बच्चे तुम सर्विसेबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। কামাই করার শখ থাকতে লাগবে, ইনকাম করা। তো লৌকিক দুনিয়াতেও কামাই করা যারা শৌখিন থাকে তারা চেষ্টা করে কামানোর জন্য, তো এখানেও অলৌকিক কামাইয়ের জন্য আমাদের শখ থাকতে লাগবে। धंधे आदि से भी समय निकाल, बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। কাজকর্মের মধ্যে থেকেও সময় বের করতে হবে। সময় কিন্তু বের হয়ে যাবে না। ওই লৌকিক কামাইতে একটা কামাই ধরে বসে থাকলে হয় না, কয়েকটা করলে কিন্তু ওর মধ্যেই ভাগ্যে জমা হয়, কামাই হয়, ইনকাম হয়, খুশি থাকে। তাই এখানেও বাবা কি বলে দিলেন, সময় নিজে বের করতে লাগবে। সময় কিন্তু কখনো পাওয়া যাবে না, সময়ের অভাব থাকবেই, কিন্তু আমাদের সময়ের মহত্ব দিয়ে সময় বাইর করে নিজের ভাগ্য জমা করতে হবে। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिली है जो कभी नहीं मिलती? আমাদেরকে এখানে শ্রীমত দিয়েছেন বাবা, যে শ্রীমতটা কখনো পাওয়া যাবে না। उत्तर, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते, बाबा श्रीमत दिच्छेन, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थे तो থাকতে ही হবে। कमल फूल समान रहो, পদ্ম ফুল মতন থাকতে বললেন বাবা। পদ্ম জলের মধ্যে থাকে, জল থেকে উপরে থাকে। ঠিক বাবা বললেন সংসারে থাকো, কিন্তু সংসার থেকে একটু উপরে থাকো। অর্থাৎ আমার সংসার, আমার ওর মধ্যেই ফেসে থাকো না। সংসারের দায়িত্ব করে তারপরে বের হয়ে নিজের ভাগ্যকে জমা করো। ভাগ্যের মধ্যে যেটা ত্রুটি আছে, কমজোরি আছে, সেগুলাকে ঠিক করার সময়টা হইল এই সময়। তো এই জন্য বাবা যারা এখন গৃহস্থিতে চলে গেছে, যান নাই ওটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু যারা চলে গেছেন তাদেরকে কি বলছেন বাবা, গৃহস্থ ব্যবহার সামাল করো, কিন্তু বাবা থেকে বর্ষা নাও। আর ऐसे श्रीमत दूसरे सत्संग में कभी मिल नहीं सकती। অন্য সৎসঙ্গে এত শ্রেষ্ঠ বিচার পাওয়া যাবে না। उन सत्संगों में बाप और बच्चे की बात नहीं। অন্য যারা সৎসঙ্গ গুরু আর শিষ্যের ব্যাপার থাকে, এখানে বাপ আর সন্তানের সম্পর্ক, পিতা পুত্র। তো পিতা কোনো সময় পুত্রকে ভালো থেকে ভালো বিচার দেওয়ার জন্যই চেষ্টা করে, কোনো সময় ভুল ত্রুটি হয়ে গেলেও ক্ষমা করে দেয়। তো বাবাও অনেক ক্ষমা করে আসতেছে। এখন আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে বাবা কি চাচ্ছেন আমার দ্বারা, আমাদেরকে কি করতে হবে, এটা করে আমাদেরকে এখন নিজের ভাগ্যটা নিজে তৈরি করতে হবে। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु शाखाओ तुम्ही। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम অনেক সৎসঙ্গ হতে हैं। ভারতে তো সৎসঙ্গ আছে, অন্য প্রান্তেও সৎসঙ্গ হয়।
ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होगा जहाँ मनुष्य की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। কোনো সৎসঙ্গে বা কোনো চর্চে কোনো মন্দিরে এই কথাটা নাই যে আমরা वर्षा माना अधिकार पाচ্ছি। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च में नहीं समझेंगे। অন্য কোনো জায়গা সৎসঙ্গ চার্চেও কিছু বুঝে না এগুলা। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। वर्षा हिसाबे बाबा আমাদেরকে वर्षा माना अधिकार, যেমন লৌকিক দুনিয়াতে বাবার যে সম্পত্তি থাকে ওই বাচ্চারা অধিকারী, তো এখানেও বাবা থেকে আমরা কি নিচ্ছি? অধিকার নিচ্ছি। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते, सबको श्रीमत मिलती है। সবাই के बाबा बोलছেন सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाप से यह वर्षा लेने आए हैं। हम बाबा से यह वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं। बाबा আমাদেরকে কি দিচ্ছেন? निर्देश দিচ্ছেন। मुझे याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। পদ্ম মতন নিজেকে পবিত্র বানাও। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है। এখানে সবাই তো আসে থাকবে না। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। এটা তো স্কুল, এখানে পড়াশোনা করতে হবে তারপরে চলে যেতে হবে বাড়িতে। हर एक बच्ची बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकते हैं। বাচ্চা হোক बच्ची হোক, ছেলে হোক মেয়ে হোক, সবাই বাপ থেকে टीचर থেকে अधिकार নেবে। यह भी ऐसा ही है। रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो। পড়াশোনা করে এই জন্য সময়টা বাবা কি দিয়েছেন? সকালবেলা দিয়েছেন। সকালবেলা পড়াশোনা করে নাও, তারপরে কাজকর্ম করো। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार में भी हो और तुम स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। সন্ন্যাসীরা বলে না কি গৃহস্থে থাকো কিন্তু পদ্ম ফুলে মতন থাকো। সন্ন্যাসীরা বলে দেয় গৃহস্থ তো নরকের দ্বার, তো মন ভাঙে যায় না। আর বাবা কি বলে দিলেন? গৃহস্থে থাকো, যদি গৃহস্থ হয়ে গেছে তার মধ্যে থাকো কিন্তু পদ্ম ফুল মতন থাকো, নিজের ভবিষ্যের জন্য খেয়াল করো। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा को दूसरा कोई याद नहीं करते। भल गीता सुनते हैं पढ़ते हैं परंतु याद तो नहीं करते ना। कथनी और करनी में फर्क है। যেটা বলে সেটা করে না, আর বাবা কি বলছেন? যেটা বলবা ওইটাই করবা। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारा ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। यह चक्र बड़ा अच्छा है। यह पुरुषोत्तम संगम होने के कारण तुम्हारा यश जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना, पुरुषोत्तम मासটা एक्स्ट्रा হয়ে যায়। তো এই সঙ্গম যুগটাও আমাদের জন্য এক্সট্রা পাওয়া গেছে। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। বাবা আমাদেরকে পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষ বানাচ্ছেন।
পুরুষোত্তম हम फिर से बन रहे हैं। फिर से माना আগেও আমরা বনেছিলাম। फिर 84 का चक्र खाए यह बुद्धि में ज्ञान है। 84 জন্ম নিলাম আর 84 জন্ম পুরা হয়ে গেল, এখন বাবা থেকে বর্ষা নিচ্ছি আমরা। और कोई सत्संग में यह नहीं समझते, অন্য কোনো সৎসঙ্গে এই কথাগুলা বুঝানো যায় না আর বুঝেও না। तुम समझते हो हमको यह बनना है, बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने यह पद पाया। ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना है। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के दो रूप भी दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। ब्रह्मा सरस्वती तो होबे ने, तार सत्ता प्रजाओं होबे। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना होता है। बाप कहते मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते मुझे याद करो। আমাদেরকেও বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো, আর ব্রহ্মা বাবাকেও বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো। ব্রহ্মা বাবাও শিব বাবাকে স্মরণ করেন। এই জন্য আমাদেরকে সম্মান ব্রহ্মা বাবাকে দিতে হবে। কালকেও বাবা বলেছিলেন না, বড়োদেরকে রিগার্ড দিতে হবে। তো পিতাশ্রী ব্রহ্মা বাবাকে আমাদেরকে অন্তর থেকে রিগার্ড দিতে হবে, আর স্মরণ শিব বাবাকে করতে হবে। শুধু শিব বাবাকে স্মরণ করলে আর রিগার্ড না দিলে চলবে না, কেন মাধ্যম তো ব্রহ্মা বাবা হইলেন। তো এই জন্য শিব বাবা ব্রহ্মা বাবাকেও বলছেন তুমিও আমাকে স্মরণ করো, আমাদেরকেও বলছেন তোমরাও আমাকে স্মরণ করো। তো বাবা বললেন गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है यह भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखा है, इस पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है, प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। यह निश्चय बैठता कि बरोबर यह सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकार आत्माएं तो भाई भाई हैं, जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है, यह बुद्धि में बैठाना है। অধিকার বাবা থেকে পাওয়া যাবে, ভাই বোন থেকে অধিকার পাওয়া যায় না। সম্পত্তি সব সময় বাবা থেকে পাওয়া যায়। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। আমাদের দুটা পিতা আছেন, লৌকিক আর পারলৌকিক। পারলৌকিক পিতা परम पिता परमात्मा, যিনি জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ চক্র থেকে ন্যারা, অজন্মা, শান্তির সাগর, প্রেমের সাগর, ওনার আমাদেরকে পরিচয় দিতে হবে। हम ब्रदर्स हैं, আমরা হইলাম ভাই ভাই। सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं। अभी ब्रदर समझने से वर्षा मिलेगा, तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि से समझ में आ जाता है। जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हैं उस पर निकाल समझाना है। बोलो दो बाप हैं, रूहानी बाप जिससे सर्व का सद्गति होनी है। रूहानी बाप হইলেন আত্মার পিতা, তার द्वारा আমাদের सद्गति होवे। वही सुख शांति का वर्षा देते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। उसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बैठाना है।
সর্বপ্রথম বাবার প্রতি সবার প্রভাব হইতে লাগে। यह है आत्माओं का बेहद का बाप, আমাদের बेहद মানে সবার পিতা। उसको ही पतित पावन कहते। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, यह निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले यह बुद्धि में बैठानी है, यह समझे तब खुशी का पारा चढ़े और कहे कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनते हैं। যখন বিশ্বাস হবে তখনই আমরা অধিকার নিতে পারব। यह खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेंगे ऐसे बेहद का बाप जो दादा में आता है। बेहद का बाप ब्रह्मा दादा मध्य आछे। पहले तो उससे मिलना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बातें कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उससे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे। बच्चे एडप्ट हो तो याद पड़े। বাচ্চাকে যদি গোদ নিয়ে নেবেন তখনই মনে পড়বে। তো ব্রহ্মা বাবার সাথে আমাদের পরিচয় হবে তখনই তো মনে পড়বে। एडप्ट नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेंगे। तो आगे एडप्टेड होते लगबे। पहले उनके बनो। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे तुम अपने को आत्मा समझते हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बातें कर रहे हैं। मेरी आत्मा का बाप से तुम्हारा भी बाप है। हमारेरो बाबा तुम्हारो बाबा। वह पूछते हैं तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है। वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है सिवाय उसके और सब भूल जाना है। बाबा छाड़ा बाकी सब किछु भूले जाते लगे। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना, कोनो अंग छिलो ना। যখন আমরা ঘর মানে পরম ধাম আমাদের অরিজিনাল ঘর সেইখান থেকে যখন আসছি সেইখান থেকে আমাদের কোনো মানে অঙ্গ ছিল না, অঙ্গে ছিলাম। এইখানে আসার পরে তারপরে আমরা শরীররূপী অঙ্গ পেয়েছি। এই জন্য কি বলে দে অঙ্গে মানে কোনো অঙ্গ নিয়ে আসি নাই আমরা। সব শরীরটাই এখানে পাইলাম আর শরীরের মধ্যে যত অঙ্গ আছে সব কিছু ওই সাথে পাইলাম। कोई भी देह संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे बड़ी हो तब उसको समझाया जाता कि यह तुम्हारा बाबा है, यह फलाना है। শরীরের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করে তারপরে যখন জন্ম নেয় বড় হয়ে যায় তারপরে ওকে বলা হয় তোমার এটা ফালানা, তোমার বাবা দাদু কাকু সব কিছু পরিচয় দেওয়া হয়। आत्मा तो सब बंधनों से न्यारी है। আত্মাকে তো কোনো বন্ধন আটকাইতে পারবে না। যদি কারো মন চায় কেউ আটকাইতে পারবে, কেউ আটকাইতে পারবে না। যদি মনে চায় না তাতে তো আটকানো বহুত বাধা আছে। বিঘ্ন তার জন্য আসে যার মনটা ঠিক তৈরি করতে পারে নাই, তার জন্য বিঘ্ন বাধা আছে। যেখানে মন থাকে সেইখানে তন আসবে, যেখানে আমাদের ধন থাকবে সেইখানে আমাদের মন যাবে। जहाँ तुम्हारा तन होगा वहाँ तुम्हारा, जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ तुम्हारा मन होगा, जहाँ तुम्हारा मन होगा वहाँ तुम्हारा तन होगा। যেখানে তন আসে যায়, যেখানে ধন আসে যায় সেখানে মন আসবেই। তো বাবা বলেন যে तुम आत्मा चली जाती तो कहा जाता है आप मैं मर गई दुनिया। যে আত্মা শরীর থেকে বের হয়ে যায় তখন কি বলে সে মারা গেল, তার জন্য তো দুনিয়াটাই শেষ হয়ে গেল। बंधन रहित हो जाती, कोनो बंधन नहीं। जबकि दूसरे शरीर मिलते, जब तक दूसरा शरीर मिले
आत्मा के गर्भ में जब तक दूसरा शरीर मिले, माँ के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर है बंधन की बात। बंधन तत पर्यंत থাকে না যত পর্যন্ত समझ आसे ना। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है। एक बाप को याद करना है, जीते जी भूले যাবার বাবা কেন বলল কি বেশি আটকাইলে বাবার দিকে যুক্ত হইতে পারবে না, যত বাড়াবেন তত কিন্তু বেড়ে যাবে, আর বাবার দিকে যুক্ত হইতে পারবেন না, অর্থাৎ যাওয়ার সময় তো কিছুই যাবে না। यह है अव्यभिचारी याद, एक जन के स्मरण करा। इसको ही योग कहा जाता है। योग माना जोड़, जोड़ माना आत्मार परमात्मार साथे मिलन। यहाँ तो मनुष्य के अनेक की याद रहती है, एखाने तो मानुषेर अनेकेर स्मरण थाके, सारा दिने माने एटा ओटा काके काके स्मरण करतेছে। तुम्हारी अव्यभिचारी याद है। आत्मा जानती है कि यह सब शरीर के बंधन खत्म हो जाने हैं। আমরা জানতে পারছি যে শারীরিক बंधन सब खत्म हो जाবে। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म विनाश होंगे, नहीं। विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रंग कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। अन्य काउके स्मरण करले विकर्म होबे ना। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अन्य काउके अपनी घंटा पर घंटा স্মরণ করতেছেন, তার দিয়ে আমাদের বিকর্ম হবে না, কিন্তু বিকর্ম বিনাশ হবে না, আর সময় আমাদের নষ্ট হবে। यह যুক্তি है पाप कटाने की। বাবার স্মরণ করলে আমাদের পাপ কাটে যায়। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब करो। शरीर চালানোর জন্য সব কিছু করতে হবে, परंतु जितना टाइम मिले, जो तो समय पावा जाए, बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाएगी। मूल बात है यह। अंदर में विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते। वाइसलेस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं, निर्विकारी दुनिया तो नहीं। यह है विशेष वर्ल्ड, इससे कोई निकल नहीं सकते। विशेष वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी जरूर है। ये दुनियाटा हलो विकारी दुनिया, तो एखाने किछु न किछु खामी माने कमजोरी थाकतेছে। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। निर्विकारी दुनिया, विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया। विकारी दुनिया हलो कलयुग, निर्विकारी दुनिया हलो सतयुग। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे, तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पति दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद का बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, गंगा में बहुत डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे थोड़े ही फिर पावन बन जाएंगे। गंगाते डुबकी लगानो तो बहुत लोग जाए, किंतु गंगाते एक डूब मारलेई जे पावन हो जाबे एत सहज प्रसेस तो ना। जन्म जन्मांतरेर आत्मार उपरे मेल
লাগি আছে পাপ কর্মের তার উপরে প্রভাব পড়ে আসে, আপনি নাক টিপে এক ডুব মারে দিলেন, সব পাপ ধুয়ে গেল। এত কি সহজ? শরীরটাই ভালোভাবে ভিজলো না, সেখানে আত্মার ব্যাপার তো একদম টোটালি আলাদা। বাড়িতে আপনি স্নান করেন, কত ভালোভাবে স্নান করেন সাবুন টাবুন দিয়ে, লেকিন গঙ্গাতে যখন ডুব মারতে হয়, নাক টিপে 2 ডুব মারলেন, বের হন, না হলে তো ধাক্কা দিলে তো আর পরিস্থিতি খারাপ। তো এই জন্য বাবা কি বলে দিলেন কি ডুব মারলে কিন্তু আমাদের পাপ দগ্ধ হয় না। এত সহজ প্রসেস না, মানুষ এসব সহজ প্রসেস বলে দিচ্ছে। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह से पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए, नीचे यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तपस्या कर रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। किसी को भी हड्डी जिगर समझाना है, बीत बीत करने से बदनाम कर देंगे। अगर देखो हम कहाँ मुछते हैं तो कहो, মানে বিত বিত করতেছেন, কথা বুঝাইতে পারছেন না, তখন কি ভাববে, তো বদনাম করবে যে কিছুই জানে না। তো বাবা কি বললেন, যখন তোমার অসুবিধা হচ্ছে তখন কি করো, अगर देखो हम कहीं मुछते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, अल्प थेमेन, हम दूसरी बहन को भेजते हैं, 1-2 से तीखे होते हैं ना। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं, कोई डिबेट तो नहीं करते। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए, गेटे ऊपरे जेटे गेटे सामने থাকবে রিসিপশনে, তাকে বাবা বললো पहचाনের लोग, মানে লোকের लोग লাগবে। अनेक प्रकार के आते हैं, बड़े आदमी को जरूर रिगार्ड देंगे, फर्क तो जरूर रहेगा ना। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इस पर प्यार है, इस पर नहीं है, द्वैत दृष्टि है, नहीं, इसको द्वैत नहीं कहा जाता। समझते यहाँ बड़े आदमी को खातिरी की जाती है, সার্ভিসেবল কি খাতিরি করেंगे, যে সেবা করবে তার তো একটু সম্মান ইজ্জত দিতেই হবে। মনে করেন कोई ने मकान बना कर दिया, सेवा করার জন্য मकान तैयारी করে দিল, तो उसकी खातिरी तो जरूर करेंगे ना। এত বড় নিজের একটা মাকানটা দিয়ে দিল, বাড়িটা দিয়ে দিল, তারপরে তাকে সম্মান করা যাবে না? এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার, করতেই হবে। सर्विसेबल की खातिरी करेंगे ना, कोई ने मकान बना कर दिया तो उसकी खातिरी तो जरूर करेंगे। तुम्हारे लिए ही तो मकान बनाया ना। जो मेहनत का राजा बनते तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। जरा मेहनत करते से राजा होवार जন্য तार प्रजा तो तुम्हें सम्मान दिबे। परंतु जन्म लिया भारत में, भारतवासी जो पहले नंबर थे अब नीच बन गए हैं, तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। बाबा भारते आसेन और सबार कल्याण करे दें। इन पुटकल भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पुटकल इन जर्नल तो होते हैं ना। अभी भारत ही नरक फिर स्वर्ग बनता है, तो भारत में ही हो जाएंगे ना। जगह जाकर क्या करेंगे। भारत में ही भक्ति मार्ग के पहले शोभनाथ का आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े ते बड़े विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है। सब चर्च
एक जैसे नहीं होती। नंबरवार तो होगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितने हीरे जवाहरात से भरपूर था। मुसलमान आदि लूट कर ले गए। बहुत धन था ना। चर्च से क्या लूट ले गए? चर्च থেকে কি নিয়ে গেল? मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनी कितना ले गया? फिर अंग्रेज आए, वह भी यहाँ के धन भेजते गए। बहुत धन ले गए। मोहम्मद गजनीও নিয়ে গেল ভারত থেকেই, আর কি হইল তারপরে আসলো अंग्रेजरा আসেও তো নিয়ে গেল না। बहुत धन ले गए, অনেক ধন নিয়ে গেছে ভারতের দিকে। अब वह तुमको वापस मिल रहा है। নিয়ে গেছে, ওটা রিটার্ন করতেছে। करोड़ों रुपया देते हैं, यह सब समय आने पर मिल रहा है। हिसाब न मिले तो आई बेले कैसे चले। बाप समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है। यह लेने देने का हिसाब है, लेन देन का। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती, वह भी बच्चों को समझाया है। फिर भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह सब फिर रिपीट होगा। हर चीज़ सतों से तमो बन जाती है। दिन में धंधा धोरी आदि करते हो, वह टाइम छोड़ो। बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में कभी कभी टाइम मिलता है। कोनो कोनो काजकर्मेर मध्य समय पावा जाए। कईयों की ऐसी सर्विस रहती है, सिर्फ सही की खलास, सिग्नेचर कर लो और सब काज खत्म। ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं। फिर भी रात तो अपनी है। যারা এরকম ফ্রি থাকে সিগনেচার করলেই চাকরি চলতেছে, তো বাবা বললেন তো অনেক সময় আছে। আর যার নাই তো রাত তো अपनी है, রাতটা তো নিজের। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते रहो, रात को फिर यह कमाई करो। यह है भविष्य 21 जन्म के लिए। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी। जितना हो सके बाप की याद में रहो, तुम्हारे बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वह समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया, बाबा के चार्ट लिखे गए। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं। एखाने तो लिखे ही, अज्ञान कालेও केहू लिखे। तुम भी चार्ट लिखते हो। चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है। कोई विकर्म तो नहीं किया, कोनो पाप कर्म तो होइलो ना। धारणा के लिए मुख्य सार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रंग कर्म न हो जो विकर्म बन जाए। एमन कोनो उल्टा कर्म ना হয় যে पाप कर्म मध्य जमा हो जाए। नंबर दूसरा, जीते जी सब कुछ भूल एक बात को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर यह अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है।
বাবাকে কত সময় স্মরণ করলাম তার চার্ট লিখতে হবে। वरदान, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बच्चों को स्मृति स्वरूप बनने वाले अटल अडोल भव, जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं, वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं। वैराग वृत्ति जार एखाने कोनो रग नाई, से कोनो दृश्य के देखते घबराते ना, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती या मोह उत्पन्न होता, आनंद के समान अचल अडोल नहीं रहेंगे। अंगद के समान बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। गंभीरता तारपरे हलो रमणीकता, शुधु गम्भीर हইলেও হবে না, শুধু রমণীক হইলেও হবে না, দুটাকে ব্যালেন্স রাখতে হবে। स्लोगन, राज अधिकारी के साथ साथ बेहद के बैरागी बनकर रहना और राज ऋषि की निशानी है। राज ऋषि तार निशाना की होबे, सब समय राजार मतन थाकबे, इंद्रिया जीत होगा, कोनो इंद्री ताके आकर्षित करबे ना, सेई हइलो राज ऋषि। राज ऋषि निजेर उपरे राज करते पारे, सेई हइलो तपस्वी ऋषि। ओम शांति।